علیکم، میں ہوں زرناز گل اور ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں۔ ملتان کی سیاست میں ایک قداور شخصیت ملک احمد حسین ڈیر، MNA پارلیمنٹری لیڈر PTI سے اور چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر۔ تو ناظرین آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں آج کے جو ہمارے کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں، جو سیاسی معاملات چل رہے ہیں، جو معیشت پہ ہماری بحران آئی ہے، جو سیلاب کی صورتحال ہے، ان سب کے متعلق ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی سر، کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کی مہربانی۔ اچھا سر، آپ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی سیاست میں انٹری کیسے ہوئی؟ دیکھیں، انٹری کی جو بیسک وجہ یہ تھی کہ میں گاؤں میں رہتا تھا ایک، اور گاؤں میں صورتحال یہ تھی کہ ہمارے گاؤں میں یہ ہوتی تھی کہ وہاں پہ ہمارے گھر کا ایک میٹر لگا ہوتا تھا اور پوری بجلی جو ہے نا وہ ہمارے گھر سے جاری ہوتی تھی۔ تو ہم لوگوں نے اتنی مشکل وہ لائف گزاری نا اس وقت، اور نہ کوئی سڑک ہوتی تھی نہ کچھ ہوتا تھا۔ تو میں نے تب سے ایک ایم بنایا تھا کہ میں جتنی مشکل میں ہم نے وہ وقت گزارا ہے تو میں اس غریب عوام کے لیے سکھ کا باعث بنوں گا جس کے لیے کوئی بہتری سوچنے والا نہیں ہے۔ یہاں ہر کوئی اپنی ذات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے چلتا ہے، لیکن لوگوں کے مسائل اور غربت اور ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر پولیٹکس جو ہے نا وہ میں نے کم لوگوں کو دیکھا کرتے ہوئے میں نے اس دن یہ ایم بنایا کہ میں اپنی زندگی کا مشن حقوق العباد کے اوپر لے کے چلوں گا، کیونکہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی حقوق العباد ہے۔ تو میں حقوق العباد پہ کام کروں گا اور میں غریبوں کی خدمت کروں گا، اور وہ خدمت کی پولیٹکس لے کر میں سیاست میں آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ عمل کروں گا۔ اچھا سر، یہ بھی بتا دیجیے کہ انسپریشن کس سے لی؟ کون آپ کا آئیڈیل تھا؟ کس کو آپ نے سامنے رکھ کر آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے سیاست میں آنا ہے، یا سیاست میں آنے کی کیا وجوہات تھی جو آگے چل کے آپ مطلب اس پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے کر پا رہے ہیں، نہیں کر پا رہے، کوئی ہرڈلز ہیں؟ دیکھیں، میری لائف میں جو سب سے زیادہ میری کامیابی میں رول ہے نا، میں سمجھتا ہوں وہ میرے پیرنٹس کا ہے۔ میرے والد نے جو میری ٹریننگ کی، انہوں نے 2-3 مجھے درس دیے۔ ایک انہوں نے یہ کہا کہ کسی کو حقیر نہ جانو۔ جو ذمہ دار جو جاگیردار ہوتے ہیں نا جی، وہ سب سے پہلے جو اپنے ملازمین ہوتے ہیں نا ان کو حقیر جانتے ہیں اور بڑا گالی دے کے ان سے بات کرتے ہیں۔ میرے والد نے مجھے کہا یہ تمہارے چچا ہیں۔ بچپن سے میرے ذہن میں ڈالا کہ جو غریب ہے وہ آپ کا چچا ہے، تو جب چچا سمجھوں گا تو میں اس کی عزت کروں گا۔ دوسری انہوں نے جو زندگی میری جس سے چینج ہوئی، انہوں نے کہا بیٹا جس دن تم فخر کرو گے پھر تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ تو سرائکی چادن کے جیڑے دی تو فخر کرے سے وال تو آکے میرا پوتر کہنا وال تو کہے بیدہ پوترے۔ میرے ذہن میں انہوں نے کوٹ کوٹ کے ڈال دیا کہ فخر کا لفظ، فخر کی سوچ ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ ہر بندے کے آگے جھک کے رہو اور زندگی اپنی اس طرح گزارو کہ کسی کے بھلے کے لیے کسی کے کام آ جاؤ اور کسی کا حق نہ کھاؤ۔ میں اس پیٹرن پہ میں پولیٹکس میں آیا اور میں صرف میرٹ دیکھتا ہوں۔ کبھی میں نے چور ڈکیٹ نہیں چھڑوایا۔ 5000 ووٹ والا مجھے کہے چور ڈکیٹ چھڑا دو، میں کہتا ہوں بھائی آپ 5000 ووٹ نہ دینا۔ میں قبضے گروپ کے خلاف ہوں، جھوٹے پرچوں کے خلاف ہوں۔ میری زندگی کا مقصد یہ ہے دکھی کو سکھ دینا، اور اللہ نے آج جس مقام پر مجھے پہنچایا ہے، میرے ماں باپ کی دعائیں، میرے استادوں کی دعائیں اور میرے غریب کی دعائیں۔ سر کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو سیاست میں مطلب آئے ہوئے؟ میں نے پہلا جو الیکشن لڑا تھا جی وہ میں نے 93 میں لڑا تھا۔ اس وقت میں 92 میں چیئرمین کا الیکشن لڑا تھا۔ اس کے بعد پھر MPA کا، پھر MNA کا۔ تو اس طرح میں نے پولیٹکس جو ہے وہ 92-93 میں شروع کی۔ اچھا ملک صاحب بتائیے گا، یہ حلقہ 154 میں آپ دوبارہ PTI کی ٹکٹ پر 2018 کے الیکشن میں MNA منتخب ہوئے اور آپ نے جو ووٹ حاصل کیے 74,220 اور عبد القادر گیلانی کو شکست دی جنہوں نے ووٹ لیے تھے 64,262۔ تو سر اس جیت کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ یہ جو گڑھ ہے یہ پیپلز پارٹی کا سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 2008 سے 13 میں MPA تھا اور میں نے اس وقت 43,000 ووٹ ایز MPA لیا تھا اور 18,000 کی لیڈ سے میں سکندر بوسن سے جیتا تھا۔ اس کے بعد 13 سے 18 میں الیکشن ہی لڑا، تو 18 میں میرا مقابلہ تھا، میری لیڈ جو سکندر بوسن صاحب سے تھی وہ تھی 37,000 اور عبد القادر صاحب سے یہ لیڈ تھی جو آپ نے بتائی۔ اس ساری وجوہات جو اس کی ترقی کی تھی وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، ماں باپ کی دعائیں۔ لیکن میں نے 2008 سے 13 میں جب میں MPA تھا تو میں نے ایک نیا ایکسپیرینس کیا، ایک تجربہ کیا۔
हमारे यहाँ चोरों को लुक आफ्टर करने की, चोरों के ऊपर रसद जाल, वो सियासत की होती थी। इस हल्के में रसद जाल वाली सियासत होती थी। इस हल्के में जो कब्जा ग्रुप थे उनको लुक आफ्टर किया जाता था, यानी कि जुल्म की सियासत होती थी। यहां पे ऐसा भी हुआ है कि पूरी पूरी आबादियों में झूठे कत्ल के केसों में फंसा के उन लोग घर छोड़ के भाग गए। इनायतपुर महोटा में ऐसा हुआ, मैं आपको जगह बता सकता हूं। यहां पे लोगों ने, जो पिछले सियासतदान थे, उन्होंने डकैतों के गैंग रखे हुए थे जो चोरियां डकैतियां करते और फिर वो वापस करवाते और फिर वो इसके बदले में वोट लेते। लोगों पे झूठे पर्चे करवा के उनको ब्लैकमेल करके उनसे वोट दिया जाता, दहशत के साथ वोट दिया जाता। इस इलाके में मैंने जब पॉलिटिक्स शुरू की तो मैंने पॉलिटिक्स हकूकुल इबाद के तहत शुरू की। मैं लोगों को मोहब्बत से जीतता हूं, मैं कभी अपने मुखालिफ के ऊपर इंतकाम नहीं लेता, मैं किसी पे जुल्म नहीं करता, किसी का हक नहीं खाता। मेरा अगर कोई दोस्त मुझे आके कहे कि इसका हक खाना है, इसका कब्जा करना है और ये करना है, तो मैं उसे कहता हूं भाई, ना मैं डकैत छुड़ाता हूं, ना मैं कब्जा करवाऊंगा, ना मैं किसी पे जुल्म करूंगा। तुमने आगे वोट नहीं देने तो ना दो, क्योंकि मेरा ईमान यह है कि मेरी जीत मेरे वोटर से नहीं है। हम सियासतदान ये समझते हैं कि हमारी जीत उन वोटरों से है जो 5,000 10,000 में वोट देते हैं। मैं कहता हूं उनसे नहीं है, हमारी जीत अल्लाह से है। जिसने अल्लाह पे भरोसा किया, देखिए मेरे जैसे कितने जिम्मेदार हैं यहां पे, मेरे से ज्यादा लोगों के पास पैसा है, आज तक वो एमएनए क्यों नहीं बने? और इतने बड़े बड़े हैवी वेट्स को हरा के कैसे एमएनए नहीं बन सके? इसलिए कि मैंने अल्लाह के भरोसे के ऊपर सियासत की, मैंने गरीब के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की। और मैंने पिछले इलेक्शन में जब मुझे धरने से टिकट मिली, मुझे तो टिकट भी नहीं दे रहे थे, और धरने से भी कभी किसी को टिकट मिली, ये भी एक मौजज़ा था। 25 दिन मेरे इलेक्शन में से रह गए जब मुझे टिकट मिली। उस वक्त मैंने अल्लाह मियां से एक दुआ की, या अल्लाह मैं को गरीब वास्ते चुन गए जिन्हें सिर दा कोई साई कोई नहीं। पिछला 18 वाला जो इलेक्शन मैं जीता हूं, वो मेरी इस दुआ पे अल्लाह ने मुझे जिताया है कि मैंने कहा मुझे ये इलेक्शन इसलिए जीतना है, मैं उस गरीब के लिए जीतना चाहता हूं कि जिसके ऊपर जुल्म होता है और मैं उसे जुल्म से बचाऊंगा। और जितने दिन मेरा इख्तियार चलता रहा है, मैंने उसको जुल्म से बचाया है। मैंने झूठा पर्चा अपने इलाके में नहीं होने दिया। जब मेरा इख्तियार नहीं चला तो उस वक्त तो इतने जुल्म हो रहे हैं। अब आजकल देखें इतने जुल्म हो रहे हैं कि लोगों को मतलब क्लियरेंस सेल लगी हुई है, थानों के ऊपर पैसा चल रहा है, क्राइम हो रहा है। मैं क्या आपको बताऊं, लेकिन जिस वक्त मेरा कंट्रोल था और मेरी बात चलती थी, अल्लाह की मेहरबानी से ऑनेस्ट अफसर लगे हुए थे, लोगों पे झूठे पर्चे नहीं होते थे। जिस दिन कब्जा होता था, शाम तक जब तक कब्जा वापस ना होता, मैं घर जाके सोता नहीं था। सर क्या समझते हैं आपने ऐसे क्या इकदाम किए कि झूठे कत्ल के जो पर्चे हैं या जो गैंग्स हैं या जो मतलब आप मसाइल पर रोशनी डाल रहे हैं, इसमें आपने ऐसे क्या इकदाम किए, उसमें किस हद तक प्रोग्रेस है या आपकी सियासत किस हद तक कामयाब रही? देखिए, सबसे पहले मैंने खुद को रोका। ये सबसे मुश्किल काम है कि जो बंदा आपको वोट दे और वो आके कहे कि ये गलत काम कर दो, उसको जवाब देना बहुत मुश्किल काम है। जब मैं उसको जवाब देता था तो वो मुझे कहते थे अच्छा सी अगली दफा वाला उड़ेक गिनसो, अगली दफा साहब वोट की उम्मीद ना रखा है। जब आप उसको नाराज करते हैं जिसने आपको वोट दिया है, तो अगली दफा उम्मीद नहीं रखते। लेकिन मैंने ये दिल में सोचा कि मुझे जिताने वाला मेरा अल्लाह है। ये बंदा जो मुझसे गलत काम करवा रहा है, अगर मैं इसका गलत काम नहीं करूंगा, मेरा अल्लाह तो जानता है ना कि मैं इसके कहने पे किसी पे झूठा पर्चा नहीं करा रहा, चोर डकैत को नहीं छुड़ा रहा। अब ये फायदा हुआ मुझे कि अब मेरे पास लोग गलत काम के लिए आते ही नहीं है। 2-3 बंदे मेरे इलेक्शन में पिछली दफा शामिल हुए जो कि क्रॉनिक लोग थे, लोगों का हक खाने में, लोगों के कत्ल कराने में, लोगों के कब्जे कराने में। वो मेरे साथ शामिल हो गए। उन्होंने कहा जी हम तो यहां एमपीए लड़ेंगे आपके नीचे। मैंने उन्हें कहा जी अगर आपने मेरे साथ एमपीए लड़ना है तो शर्त यह है कि ये काम छोड़ने पड़ेंगे, आपको मेरिट पे चलना पड़ेगा। उन्हीं दिनों में कोई डीएचए के एक बंदा फौत हुआ तो उसके पैसे उन्होंने रखे हुए थे। पता चला कि वो इतने पैसे खा गए। मैंने कहा भाई मैं आपके साथ नहीं चल सकता। मैंने उन्हीं दिनों में पीछे किनारा कर लिया। और मुझे उसका पॉलिटिकली वो कह रहे थे कि आज आप इनको छोड़ेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा क्योंकि इलेक्शन सर पे है। तो मैंने कहा भाई मैंने ये नहीं देखना कि मेरा नुकसान होगा। अगर ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, मेरे गरीब को तंग कर रहे हैं, तो मैं इनके साथ नहीं चल सकता। मैंने अगर जीतना है तो मेरे अल्लाह ने जितवाना है। मुझे ये नंबर 2 ब्लैकमेलर लोग नहीं जितवा सकते। अल्लाह ने साबित किया, मेरी उस बात को सच किया। ये मौजज़ा है। अब देखें, मैं जाके मुझे टिकट इन्होंने बोसन का अनाउंस कर दिया पीटीआई वालों ने।
ठीक है, अनाउंस हो गया, मैंने जाके धरना दे दिया। मैंने जब 2500 बंदों के साथ वहां धरना दिया, मुझे कहते हैं जी वो आपके चेयरमैन साहब तो पठान है, वो बड़े जिद्दी हैं, वो तो आपको पार्टी से निकाल देंगे, उनके घर के आगे आपने धरना दे दिया, उनका रास्ता बंद कर दिया। मैंने कहा यार मैं अल्लाह के भरोसे पे जा रहा हूं। तो वही चेयरमैन ने मुझे टिकट दी। किसने दिलवाई? अल्लाह के भरोसे पे। या मीडिया वालों ने सुबह दोपहर शाम वहां कवरेज की, और जब उन्होंने देखा इतनी कवरेज हो रही है और पीटीआई के लोग कह रहे हैं धरने वालों के आगे धरना हो गया है, तो उनको मजबूरन टिकट देनी पड़ी। मैं शुक्रगुजार हूं मीडिया का जिन्होंने मुझे वो टिकट दिलवाई। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो गढ़ समझा जाता है, NA 154 को समझा जाता है, मुल्तान की मुस्तकबिल का इन्हिसार भी इसी इलाके पर है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी जो है ना, वो जब से बेनजीर शहीद इस दुनिया से गई हैं, उसके बाद किस्सा पारनिया बन गई है। देखें, जब आपका एक ही खानदान के 4 बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं मुल्तान में, गिलानी खानदान के बेटे लड़ रहे हैं, बाप लड़ रहा है, भाई लड़ रहा है, तो क्या बाकी बंदे मर जाएं? अब शाह महमूद साहब को देखें, उधर बेटा लड़ रहा है, उधर बेटी लड़ रही है। भाई आप जिए, हम ये छोड़ जाते हैं मुल्क, ये मुल्क ही आपका है। उस वक्त दुख से मैं ये कहता हूं, 1857 की जंग आजादी में हमारे अहमद शहीद खरल, जिन्होंने इस मुल्क के लिए जंग लड़ी, वो हमारे बुजुर्ग थे। हम डेहड़ खरल हैं असल में। उस वक्त भी ये लोग आगे आ गए, इन्होंने हमें शहीद किया। आज भी इनके बच्चे और ये यहां पे हुक्मरानी कर रहे हैं। 5 बच्चे गिलानी के लड़ रहे हैं, 3 बच्चे उसके लड़ रहे हैं, शाह महमूद साहब के। तो हम कहां जाएं, वर्कर कहां जाएं? जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद हुसैन डेढ़ साहब, लेकिन वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सिलसिला दोबारा यहीं से शुरू करते हैं। नाज़रीन, और हमारे साथ मौजूद है अहमद हुसैन डेढ़ साहब। इनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। जी अहमद हुसैन डेढ़ साहब, अच्छा सर बताइएगा कि आइंदा इलेक्शन को आप किस नजर से देखते हैं? मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो हमारे मुल्की हालात हैं, इसमें इलेक्शन के बारे में सोचना वो एक बाद की बात है। इस वक्त जो हमारे इदारों पर हमले हो रहे हैं, देखें, सबसे पहले हमने अपने मुल्क की सर्वाइवल को सोचना है। अब मुझे आप ये बताइए, हमारे 3 अजला सैलाब की जद में आए हुए हैं, 3 सूबे जो हैं वो सैलाब की से मुतासिर हुए हुए हैं, लोग महसूल हो चुके हैं, लोग वहाँ मतलब राशन पानी की कोई रिलीफ नहीं है। उसके लिए एज ए MNA आपने क्या इकदाम किए? बात यह है कि सैलाब की सूरत हाल जो मुझे अभी पता चली है कि इस चनाब में भी सैलाब आने वाला है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो कि इंडिया ने कुछ पानी छोड़ा है। हमने इस इलाके को विजिट किया है। इस वक्त यहाँ जो मुल्तान में सूरत हाल है, मुल्तान में इस वक्त खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन अनकरीब यहाँ पे खतरा हो सकता है। और इस दफा जो पानी यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो काफी ज्यादा है। उसके लिए हमने पेशबंदी जो है ना, उसकी हम कर रहे हैं, और उसके लिए जो प्लानिंग है उसको हम देख रहे हैं। इस वक्त जो पंजाब में सूरत हाल है, जो आप डीजी खान, राजनपुर या यहाँ पे, वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने विजिट करके उन लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। एक्चुअली जो पंजाब हुकूमत है, मैं उससे गिला करूंगा कि पंजाब हुकूमत को जिस तरह यहाँ पे सैलाब जदगान को संभालना चाहिए था, वैसे वो संभाल नहीं रहे। और ये बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि आपकी 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम फंड्स, तमाम इख्तियारात पंजाब हुकूमत के पास आ गए। रिलीफ प्रोग्राम तमाम पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब पंजाब हुकूमत को ये चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा इन लोगों का ख्याल करे और इनको रिलीफ दे, जबकि वहां तक उनकी अभी तक वो लोग कई जगह पे पहुंचे भी नहीं है।
تو میں آپ کے توسط سے پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہاں پہ اس کے کمیٹیز بنائی جائیں اور اس کو سیریسلی ٹیک اپ کیا جائے، اور جہاں بھی مسائل ہیں، جہاں بھی لوگوں کو تکلیفیں ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سامان وغیرہ بانٹنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ اس کو بند کے اوپر تقسیم کر دیتے ہیں، اور جہاں اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے تک نہیں پہنچتے، اور بند پہ وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو خشکی والے لوگ ہیں، وہ لے کے چلے جاتے ہیں اور اصل بندے رہ آپ جاتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی نظر میں کہ پنجاب حکومت ہی کیوں، باقی جو حکمران ہیں، باقی جو سیاستدان ہیں، کیا وہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے پاس اتنا پیسہ ہے تو کیا وہ مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ صرف حکومت ہی کیوں؟ ہم صرف حکومت یا بیرونی امداد کی طرف ہی کیوں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جن علاقوں میں اسی بات کی طرف آ رہا تھا، یہ بہت، یعنی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ جاتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے کہ یہاں سے سامان لے کے جاتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بند کے اوپر جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو دے کے واپس آ جاتے ہیں۔ حکومت جو ہے نا وہ جائے گی تو وہ لانچ پہ رکھ کے اندر جو بیٹھے ہیں ان کو دے کے آئے گی۔ اب کس کی سپورٹ ہم نے کرنی ہے؟ ہم نے سپورٹ کرنی ہے بند پہ کھڑے ہوئے خشکی کے لوگوں کی، یا جو پانی کے لوگ ہیں جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں گہرائی میں ان کی؟ لہٰذا پلاننگ اور صحیح جگہ پہ چیز پہنچانے کی ذمہ داری حکومت کی ہے، اور اگر آپ حکومت کو اگنور کر کے آپ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ لوگ ہی سب کچھ کریں، تو ان کو کہیں پھر پنجاب حکومت چھوڑ کے چلے جائیں۔ دیکھیں، حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ حکومت کی یہی ذمہ داری ہے کہ جو 20 کلومیٹر دور بھی اندر بیٹھا ہے وہاں تک بھی اس کو اس کی ضروریات کی چیزیں پہنچیں، اور وہاں اب ہم لوگوں کے پاس لانچیں تو نہیں ہیں کہ ہم لانچ لے کے گھس کے وہاں پہنچ جائیں۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جتنا زور دینا ہے نا آپ حکومت کے دیں۔ ہمارے ملک میں یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں، اب میں نے جس کی مدد کی ہے، میں جہاں جا کے جو چیز دے آیا ہوں، یہ جو کچھ بھجوایا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو میڈیا پہ ایکسپوز کروں، کیونکہ میں میڈیا پہ ایکسپوز کروں گا، فوٹو کھینچ کے دکھاؤں گا کہ میں آٹا بانٹ رہا ہوں، میں چیزیں بانٹ رہا ہوں، کہیں گے جی یہ سیاسی سٹنٹ کر رہا ہے۔ میں جو ان کی مدد کروں گا میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن وہ میں کروں گا تو اپنی نیک نیتی سے کروں گا، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کروں گا، ان لوگوں کو لک آفٹر کروں گا۔ لیکن اصل ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، اصل ذمہ داری پنجاب حکومت کی ہے کہ جہاں بھی وہ 10 کلومیٹر دور 20 کلومیٹر دور پانی میں بیٹھے ہیں ان کو وہاں ان کی ضروریات کی چیزیں پہنچائی جائیں۔ اچھا سر، ایک کوسچن کرنا چاہوں گی، آپ نے 4 کنال قیمتی اراضی مختص کی تھی 1122 کی عمارت کے لیے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ دیکھیں، میں نے فنڈ مجھے ملا تھا پنجاب حکومت کی طرف سے، اور میں نے 2 1122 سینٹر جو ہے نا اس کے لیے 4 کروڑ اور 2 کروڑ فنڈ دیا تھا، لیکن یہاں پہ متی تل روڈ کے ساتھ لینڈ اویلیبل نہیں تھی، تو میں نے پھر اپنی 4 کنال زمین سول سیکریٹریٹ جو بن رہا ہے اس وقت، سول سیکریٹری اس کے سامنے 4 کنال زمین دی جو تقریباً 40 کروڑ کی ہے۔ وہ میں نے اس لیے دی کہ آخرت کے لیے دی۔ یہ تو مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے پیسے خود لیے ہیں، لیکن وہ میں نے 40 کروڑ روپے کی زمین دی ہے اللہ کی مہربانی سے، اور وہاں پہ 1122 سینٹر بن رہا ہے، اور وہ 1122 سینٹر جو ہے ملتان کا سب سے بڑا 1122 سینٹر ہوگا، ماڈل 1122 سینٹر ہوگا۔ ہماری حکومت جو ہے پنجاب کی چلی گئی، ادروائز جو یہاں کے ڈی جی ہیں 1122 سینٹر کے ڈاکٹر صاحب ہیں، تو وہ بہت ہی قابل انسان ہیں، بہت ہی، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہی از اے لیجنڈ۔ تو ان سے میری بات ہوئی تھی کہ ہم اس 1122 سینٹر کے ساتھ 4 کنال میں نے زمین یہ دی ہے، میں آپ کو مزید بھی 2 کنال زمین وہاں دے دوں گا، ہم ایک ٹاور بنائیں، اور اس ٹاور میں جتنے بھی 5 گریڈ سے نیچے 1122 کے ملازمین ہیں ہم ان کی وہاں رہائش رکھیں، ان کو وہاں پہ ہم اپارٹمنٹس بنا کے دیں۔ اب سیکیورٹی پرپز کے لیے جب آپ کا 1000 یا 2000 بندہ جو کہ وہاں پہ اکٹھا اگر کسی جگہ پہ ہو تو وہ سیکیورٹی پرپز کے لیے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو ملازمین ہے 1122 سینٹر، کوئی کسی ضلع کا ہے کوئی کسی ضلع کا ہے، جب یہاں نوکری کرنے آتے ہیں تو بیچاروں کی تنخواہیں جو ہیں وہ کرایوں میں چلی جاتی ہیں، اور ان کو اگر زمین میں دیتا ہوں، گورنمنٹ پیسے دے، اور اگر ان کو ہم نے یہاں رہائش کے لیے ایک ٹاور بنا کے دے دیں، میں اس کے لیے بھی زمین دینے کو تیار ہوں۔ سر ایک کوسچن اور کرنا چاہوں گی، آپ کی پی ڈی ایم جوائن کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی پالیسیوں سے آپ مطمئن نہیں تو کیوں، کیا وجہ؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں اس وقت بھی پی ٹی آئی کا پارلیمانی پارٹی کا لیڈر ہوں، میں اس وقت بھی پی ٹی آئی میں ہوں، میں نے عمران خان صاحب کے خلاف کہیں ووٹ بھی نہیں دیا،
जब तक आप वोट ना दें आप डिस्क्वालीफाई या डिस्चार्ज नहीं होते पार्टी से। मेरी ये है कि 3 साल से मैं स्टैंड लिया हुआ है बहुत सारे इश्यूज पे जो गरीबों से मुतल्लिक थी और उनको वो हक नहीं मिले, मैंने उस पर स्टैंड लिया है। देखें, जब हम किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं, पार्टी की टिकट से लड़ते हैं, क्या हम जमीर बेच देते हैं? हम लोगों के हकूक की बात नहीं कर सकते? हम लोगों को सुख देने की बात नहीं कर सकते? मैंने जले हुए बच्चों के लिए आवाज उठाई जो मर गए, लेकिन खान साहब ने उनको बचाया नहीं। जिन लोगों के अंगूठे लगते थे जमीन के और बगैर अंगूठे के जमीनें उतर जाती थी 2-2 कनाल, और मैंने उनके केस दिए, उनको मैंने फोरेंसिक करा के केस दिए कि इसका अंगूठा ही नहीं है। आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। जब आप इंसाफ नहीं देंगे तो क्या हम पार्टी में खड़े रह के उसके लिए आवाज भी नहीं उठा सकते? ये खान साहब की मेहरबानी है कि जब हमने आवाज उठाई तो उन्होंने कहा आप गद्दार हो। अगर इस बात पे गद्दार डिक्लेयर करते हैं तो ऐसी हर गद्दारी मैं सर आंखों पे लेने को तैयार हूं कि मेरे गरीब पे जुल्म हो रहा है, उसके ऊपर बात करने पे आप हमें गद्दार कहते हैं तो हमें मंजूर है। मुझ पे इल्जाम लगा दिया आपने पैसे लिए, 40 करोड़ की जमीन मैं 1122 को सेंटर को दे रहा हूं, 40 करोड़ की जमीन, और मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं तुमने 20 करोड़ ले लिए। इससे बड़ी कोई ह्यूमिलिएशन है? अच्छा, एंड में मुझे बताइएगा आपके हल्के में आपके दौर हुकूमत में क्या क्या तरक्याती काम हुए या आपको किन मसाइल का सामना रह गया? मेरे साथ ये मसाइल थे कि यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ना कोई जॉब्स आने दी, सारे चेयरमैन उन्होंने खुद बनवाए, एडिशनल एडवोकेट जनरल उन्होंने बनवाए। यकीन कर लें कि जो चेयरमैन मार्केट कमेटी बनाया वो चाय की पत्ती का स्मगलर था। जो एमडीए का चेयरमैन बनवाया 3 दफा एजेंसियों ने रिपोर्ट दी कि ये करप्ट है, उनको हटा के फिर बनवाया गया। यहां पे हमारी कोई नहीं सुनी जाती थी। यहां के जो जनूबी पंजाब के वजीर आजम थे वो शाह महमूद कुरैशी साहब थे और उन्होंने हमारी एक भी नहीं चलने दी। मैंने कोई जाती काम नहीं मांगा था, मैंने कहा था कि मेरे गरीब जो मेरे हल्के के हैं उनके भी तो हकूक हैं। 7 लाख वो हमारी आबादी है हमारे एमएनए के हल्के की। उन्होंने खुद ऐलान किया कि मैंने अपने हल्के में 11 अरब रुपया लगाया है और हमारे हल्के में 10% भी नहीं लगा। ये जो तहरीके इंसाफ की तहरीके बेइंसाफ है, जो हमारे साथ ये बेइंसाफियां हुई, हमने उसी पे आवाज उठाई है। पीटीआई कैंट का इलेक्शन हुआ जो मेरे हल्के में है, 10 यहां पे बने मेंबर और मुझे उस कमेटी में नहीं रखा गया जिस कमेटी में, और जो इन्होंने अपनी मर्जी से टिकटें दी और 10 के 10 हार गए। यानी कि इन्होंने हमें बताएं हमारे हकूक कहां हैं, तहरीके इंसाफ का इंसाफ कहां है। फिर जितना लूटा गया आपके वजीर आला साहब ने, बुज़दार साहब ने इस इमरान खान को फेल करने वाले वो थे। जितना उन्होंने इस मुल्क में करप्शन की, आज हमने ये सोचा था कि आगे जो है ना बुज़दार साहब को नजदीक नहीं लगने देंगे जितना इन्होंने तबाह किया है। इदारों ने बताया इनको, खान साहब को, कि वो आपको तबाह कर रहे हैं, लेकिन खान साहब जो हैं ये ना पहले सुधरे हैं ना अब सुधर सकते हैं, इसलिए कि अब उन्होंने उनको पार्लिमानी पार्टी का लीडर बना दिया। यानी कि इस वक्त भी नंबर 1 उनका जो बंदा है वो वही है, इसलिए उनकी चॉइस हमेशा वही रहेगी, उनको करप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर एक सवाल एंड करने से पहले, खत्म करने से पहले एक सवाल और करना चाहूंगी। जो अवाम का मुश्तरका मसला चला आ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, हर बार इजाफा होता जा रहा है, अवाम की हड्डी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अवाम की कुव्वत इस्तात बढ़ाने के लिए आप लोगों के क्या इक़दाम है या महंगाई को कंट्रोल करने की आपके ख्याल में क्या पॉलिसीज हो सकती हैं? पहली बात यह है कि हमारी ना मीडिया के पास इंसाफ है ना हमारी अवाम के पास इंसाफ है, और ये इंसाफ ना होने की वजह से आज अवाम जो है ना इस हाल पे पहुंची है। ये बताएं कि महंगाई की वजह कौन है? अब महंगाई किसकी वजह से हुई है? 4 साल वालों की पॉलिसी से या 2 महीने वालों की पॉलिसियों से? जिन्होंने पिछले 4 साल हुकूमत की है, 4 साल में 4 फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील किए गए हैं हर साल। अगर ये असद उमर को पहले साल इन्होंने लगाया था, 4 साल रखते तो 4 साल में उन्होंने फाइनेंस कंट्रोल कर लेना था। इन्होंने हर साल नया फाइनेंस मिनिस्टर लगाया। खिलाड़ी को आप कहें कि आप फाइनेंस कंट्रोल करें, वो कर सकता है। जिन्होंने इस फाइनेंस को आईएमएफ के साथ मुआहदे करके उस हालत तक पहुंचाया है, उधर मुआहदा करके आए हैं कि हर महीने 5 रुपए रेट बढ़ाएंगे। 50 रुपए इन्होंने 6 महीने में रेट बढ़ाना था, इधर जाके 10 रुपए रेट कम कर दिया।
ये बताएं किससे जुल्म किया आपने? आपने इस पाकिस्तानी कौम से जुल्म किया है। और पाकिस्तानी कौम, क्या बात करूं मैं अपनी इस प्यारी कौम का, जिसको ये भी नहीं पता कि महंगाई जो है किसकी वजह से हुई है। जिसकी वजह से हुई है उनको तो हीरो बना लिया आपने। और अगर आप इस तरह बेइंसाफी करेंगे तो तकलीफ किसकी होगी? जो आपके इदारों पे हमले कर रहे हैं वो आपके हीरो हैं, जो आपके महंगाई की वजह है वो हीरो हैं। तो ये बताएं कि जब आप उन लोगों को हीरो बनाएंगे जिन्होंने आपके मुल्क के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ बातें की हैं, तो मैं पाकिस्तानी कौम से सवाल करता हूं, आपको सुख कहां से मिलेगा? आपको इंसाफ कहां से मिलेगा? ये सारी गलतियों का बोझ तो आप पे आना है। आप किसी के जिम्मे भी लगा लें, तकलीफ तो आपको होनी है। लेकिन अगर आप इस चीज को समझ लें कि आपको इस हाल में पहुंचाने वाला कौन है, क्योंकि मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा। एक वक्त था 2017 में जब 3 मोटरवे बने थे, और उस वक्त जो अमेरिका के और यूरोप के जो थे आपके एम्बेसडर, वो आके हमारी प्लानिंग के ऑफिस में बैठते थे कि हमें आप प्रोजेक्ट्स दें, हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं। और ये बताएं, सी पैक गेम चेंजर था। सी पैक को किसने खत्म किया? इसी बात पे देख लें, सी पैक को किसने खत्म किया है, किसके कहने पे खत्म किया है? फॉरेन फंडिंग जो ली गई, क्या वो इसीलिए ली गई फॉरेन फंडिंग के सी पैक को खत्म किया जाए? सी पैक खत्म करने वाला कौन है? इसी पे इंसाफ कर ले। कौन कौन सी बात आप देखेंगे, लेकिन हमारी जो कौम है पता नहीं उस पर क्या जादू हो गया है। मुझे कहते हैं कि आप उनके खिलाफ बात ना करें क्योंकि सारी कौम उनके साथ खड़ी है। मैंने कहा कि मैं, जो मेरा ज़मीर कहता है, मैं हक और सच की बात करूंगा, चाहे मैं अकेला खड़ा हूं ना, मैं हक और सच की बात करूंगा। एक दिन आएगा कि आप कहेंगे कि अहमद हुसैन डेहर ठीक कहता था, और यह साबित होगा कि आज हमारा जो मीडिया कह रहा है कि जी जो इनके पास एक पब्लिक वो है, स्पोर्ट है, हमें सब इनके पीछे चलना चाहिए। आप चलें इनके पीछे, लेकिन ये बता दें कि आप सोमालिया ना बनाए पाकिस्तान को इनके पीछे चल के। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे अहमद हुसैन डेढ़ साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इन्होंने बताया कि सलाम जब्दान के हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं, महंगाई के हवाले से क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, या इनके दौरे हुकूमत में इनके इलाके में तरक्याती काम हुए और उनमें क्या मसाइल इनको हर्डल्स पेश आ रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद हुसैन डेढ़ साहब कि आप आए और आपने हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए। जी नाज़रीन, इसी के साथ इजाजत दीजिए अपनी मेजबान जरनाक गुल को। अल्लाह हाफिज।